Ma'am, the date sheet of pre-boards have been come. Okay. When we say the word sectors of Indian economy, see, every person who are employed, who are working, who are creating some money, some wealth, some revenue, they all are engaged in one or the other work. मतलब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जो कि प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट करते हैं. Like some of your fathers may be lawyers, some of them might be businessmen, others may be working in some office, some may be in the insurance sector, some may be in the government offices. That means, or that means somewhere or the else where we are doing the work for our livelihood, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. There are always two activities. One we say economic and the second one we classify as non-economic. Anything that we do for earning money, for earning income, which is done on a regular basis, that is economic activity. And all the things which we do for self satisfaction, or which is done seldom, कभी कभी, not often, seldom, कभी कभी करते हैं, those are non-economic activities. And something which, जैसे कि आप अपने घर में अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे हो, that's a non-economic activity. But if you are working in a shop, you are earning money, then it is an economic activity. So that means all the people in the working category, I'm not talking about the non-working category, I'm talking about all the people in the working category are engaged in one or the other and ये जो work है, this work is divided on some criteria. हम इस काम को किसी क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं. जैसे on the basis of activities done, जो उनमें काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर on the basis of रूल्स हम डिवाइड कर सकते हैं, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. दे आर द सेम लाइक हम लोगों ने उसमें किया था इन दी ज्योग्राफी, दैट द रिसोर्सेज आर द सेम बट वी गिव इट डिफरेंट नेम्स. तो हम इसको जो है अलग अलग नेम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं. नाउ on the basis of activities, when we say, जब हम कहते हैं activities के बेस पर, तो we divide those activities into, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं into agriculture, related agriculture and related activities हो सकती हैं, then
something which is raw materials transformed into finished goods, हम उसमें काम कर सकते हैं. Or we may be working in some allied services, some allied activities हम काम कर सकते हैं. तो जो हमने किया है on the basis of agriculture and related raw materials and finished good, इनको हम बोलते हैं primary, secondary and tertiary services. On the basis of activities जो हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू प्राइमरी, इनटू सेकेंडरी और इनटू टेरिशरी. This is how we divide it on the basis of the work, the activities done in that particular area. उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं. Anything which is related to एग्रीकल्चर और एनीथिंग, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, जहां आप नेचर को मतलब कि यू आर एक्सप्लॉइटिंग, दैट ऑल कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर. इट कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन वेयर यू आर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू सम फिनिश्ड गुड्स. आप प्रोसेस करते हो लेकिन आपकी जो है यू आर हैविंग अ स्मॉल मशीन, आपके पास मशीन है, आप जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है आप उसे फिनिश्ड गुड्स में कर रहे हो. आपके पास बहुत बड़ा वर्कशॉप है, यू आर हैविंग अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और यू आर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस. आप मिट्टी से घर बनाते हो, आप ब्रिज बनाते हो, दैट्स सेकेंडरी. And all those services like banks, insurances, or any other service, teaching, doctor, lawyers, they all provide you the service. So that means we can divide the activities on the basis of primary, secondary, and tertiary sectors. Right? Now, if we look into the, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि क्या दिस, ये जो हमने डिवाइड किया है, हैज इट बीन ऑलवेज, was every time the activities divided into the same manner? तो the answer says no. In the early period, हमारा जो early period था, most of the people were involved only in agriculture, or you can say forestry. मतलब पुराने, I am talking about the bygone eras, thousands years back. Most of the people were involved in agriculture, forestry, and they all had their subsistence. उनके पास अपना subsistence रहता. Subsistence मतलब वो बस जितना उनके पास होता था वो उसी को रखकर वो लोग गुजारा कर लेते थे. But when the industries started coming around 18th century, आपके 18th सेंचुरी के आसपास में सबसे पहले इंग्लैंड में आपका लीड्स एंड मैनचेस्टर्स वर द इंडस्ट्रियल सिटीज, लीड्स एंड मैनचेस्टर्स. तो जब आपके इंडस्ट्रीज आई, व्हेन द इंडस्ट्रीज केम ओवर, देन देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, कुछ लोगों ने एज अ साइड बिजनेस किया था. साइड बिजनेस कैसे? व्हेन दे वर हैविंग द फ्री टाइम, they would come to the industries, और industries में भी उन लोगों को जो है when they required the people, तभी वो लोग नौकरी पे रखते थे उनको. Not all the time all the industries have the work, तो sometimes they may be having an off, sometimes they may be having more work. जैसे book binding आपका जो है during the Christmas time, it was very very common. उस वक्त में माइग्रेंट लेबर्स की आपको जरूरत पड़ती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप. तो दे ऑल यूज टू हैव दिस काइंड ऑफ, कुछ लोगों ने अपने आप को शिफ्ट ओवर कर लिया, कुछ लोगों ने जो है इंडस्ट्रीज को, इसका नाम क्या, एज अ माइग्रेंट लेबर्स काम कर रहे थे. नाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर.
ये दोनों जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों साथ में चलते हैं. एग्रीकल्चर गिव्स यू द प्रोडक्ट्स विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड जो आपका इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल्स आपको आते ही एग्रीकल्चर से, लाइक जूट, रबर. बट देयर वाज अनदर नीड, इन सामान को कंज्यूमर तक या लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. एंड द लेटर पीरियड जो है दैट सॉ द एडवांसमेंट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर्स, द सर्विस इंडस्ट्री. हम टेरिशरी सेक्टर को सर्विस इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये भी आपके जरूरी हो गए. एंड दस हमारा जो पहले एग्रीकल्चर था, देन आपके सेकेंडरी सर्विसेज, देन आपका टेरिशरी सेक्टर. एंड फॉर द पास्ट 100 years, for the past 100 years, there has been a complete shift over from agriculture to tertiary. मतलब इस इन पीरियड में टेरिशरी इंडस्ट्री जो है इट हैज गेन मोर इम्पोर्टेंस. द टेरिशरी सेक्टर हैज गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस, एंड द रीजन इज now we require good health, we require schools, we require banks, we require transport, we require insurance, communication, phone, हमें इन सब की जरूरत पड़ती है. And that is why for the past 100 years there has been a shift in these industries. So that is how people work. But in India, I'm talking about India. In India, agriculture is the most labor absorbent sector. एंड यहाँ पर नौकरी जो है वो मिल जाती है. नौकरी मतलब नौकरी नहीं, जो वर्कर्स होते हैं. और इसीलिए अगर आप देखो, इफ यू लुक इनटू द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, अगर आप हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट अराउंड 60, अभी तो मेरे ख्याल में 55% है, अबाउट 60% पीपल आर इन एग्रीकल्चर. वेयरएज आपके जो सर्विस और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये पहले कम था, बट अब फॉर द पास्ट 10 years टेरिशरी इंडस्ट्री आपकी थोड़ी ज़्यादा ग्रो हुई. और इससे क्या पता लगता है? व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? वी इन्फर दैट वी रिक्वायर मोर इंडस्ट्रीज एंड मोर सर्विसेज. हमें इससे ये पता लगता है दैट वी रिक्वायर मोर इंडस्ट्रीज एंड मोर सर्विसेज, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें होंगी तो बट नेचुरल है कि एग्रीकल्चर को भी हेल्प मिलेगा. फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेचारे, उनके पास वेयर हाउसेज नहीं होते हैं, दे डोंट हैव द बैंकिंग सिस्टम, दे डोंट हैव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो दे वुड आल्सो बी हेल्प. And if there are more industries, then they can accommodate more laborers. Unemployment की जो problems हैं उनको हम कम कर सकते हैं. So that is how. But हमारे यहाँ पर peculiar क्या है? That tertiary sector is सबसे ज़्यादा आपका जो GDP है वो हमारा tertiary से आता है. The maximum GDP. But the maximum employment is in agriculture. सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो आपका एग्रीकल्चर है और सबसे ज्यादा जीडीपी हमें टेरिशरी देता. तो वी नीड मोर एम्प्लॉयमेंट इन टेरिशरी सेक्टर. नाउ देयर कम्स कि होता क्या है हर एक कंट्री में, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in a year in domestic territory,
डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन इंडिया, मतलब वी आर नॉट वर्किंग अब्रॉड, हम वो उनके बारे में काम बात नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी, जो हम यहीं के लोग जो काम करते हैं वो. इन अ ईयर उसका हम रेवेन्यू निकालते हैं. अब उस रेवेन्यू में क्या करते हैं, वी यूज ओनली द फाइनल गुड्स. आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है दैट व्हाई डू वी यूज अ फाइनल गुड्स. फाइनल का मतलब क्या होता है, द गुड्स और द सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, जो सबसे आखिर में जाता है, जो यूज हो जाता है, उनको हम फाइनल गुड्स कहते हैं. जरूरी नहीं है द फाइनल गुड्स हैव टू बी कंज्यूम बाय अस, इट कैन बी इवन बाय द इंडस्ट्री. जैसे मशीन है, मशीन को गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उसे कंज्यूम कौन करता है, वो इंडस्ट्रीज करती हैं. whereas we have the consumer goods like TV, रेडियो, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन, ये सब भी कंज्यूमर गुड्स हैं. द वन विच वी आर ईटिंग, दे आर ऑल्सो कंज्यूमर गुड्स. तो जो फाइनल हमारे तक आता है, जो वैल्यू हम उसकी देते हैं, उस वैल्यू को हम टोटल करते हैं ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, फाइनल गुड्स ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, और हम निकालते हैं द जीडीपी. और इसके अंदर हम जो इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं उनको नहीं डालते. इंटरमीडिएरी मतलब शुगर बन रहा है, हमने शुगर खरीदा 50 रुपीज किलो, तो वो फाइनल गुड्स को लिया जाता है. अब शुगर जो है उससे पहले इट मस्ट हैव बीन प्रोसेस्ड इन द मशीन, तो गन्ना, देन मशीन के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपके शुगर में, जो हमने फाइनली शुगर खरीदा उसमें एडेड है. तो हम जो है ओनली व्हेन इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, व्हेन इट इज फाइनली सोल्ड, उस जो रेट है, वो जो मतलब कि उसकी जो वैल्यू है, उसको हम लगाते हैं. वी डोंट ऐड द इंटरमीडिएरी गुड्स, एंड thus we calculate the GDP of a country. And according to that, the maximum GDP is from tertiary, but the maximum employment is from agriculture. And this we need to change. And for the past 100 years, most of the service industries have increased. This is because now people need good tourism. हम बाहर जाना भी पसंद करते हैं, हम खाना पीना भी पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि we should be educated in good schools, we want good health system. So there has been a shift. But yes, not all the industries are owned by government. तो अब हमारा आता है the second one, who does the industries own. अब ये तो था हम कहाँ काम करते हैं, या फिर वो 3 सेक्टर्स जो हमारे कंट्री का रेवेन्यू देता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप देखते हैं तो ओनरशिप के बेसिस पर वी हैव पब्लिक इंडस्ट्रीज, वी हैव private industries, we have cooperative industries, and we have joint ventures. आपके में सारे नहीं हैं, but I'm just doing it. Public industries owned by government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट. प्राइवेट ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, जैसे आप, मैं. कोऑपरेटिव सेक्टर्स जैसे शुगर मिल्स. एंड जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्लस प्राइवेट, दोनों मिलकर ओन करते. नाउ public sector industries are those industries which are specially established so that they are producing the goods or services which can cater to the welfare of the people. 1947 में when we got the independence,
when we got the independence, we were not having efficiency. We were not efficient. We were not grain sufficient. हमारे पास जो है खाने पीने की भी दिक्कत थी. So therefore हम लोगों ने, इंडिया ने क्या किया? It adopted planned economy. उसने जो है रशिया के मॉडल को लेकर, रशिया को देखकर एक इकोनॉमी को प्लान किया. एंड अंडर दिस दे अडॉप्टेड द 5-year प्लान्स. उन्होंने अडॉप्ट किया 5-year प्लान्स. और माना गया दैट ये जो 5-year प्लान्स है, इसमें देयर वुड बी 2 kinds ऑफ एलोकेशन. वन बजट और दूसरा नॉन बजट. मतलब एक होगा जो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पर ही खर्चा किया जाएगा, और बाकी हमेशा जो बाकी गवर्नमेंट रेवेन्यू लगाती है रोड बनाने में, वो अलग बात है, वो नहीं बनाती है, रोड बनाने में, डैम्स बनाने में. लेकिन जो बजटेड होगा उसमें क्या होगा? दे विल बी टारगेटिंग 5 साल के लिए, दे विल उससे रिलेटेड सब कुछ. एंड द फर्स्ट 5-year प्लान जो था हमारा, वो हमारा था ऑन एग्रीकल्चर. Under this, they tried to develop the agriculture, green revolution, seeds, dams, irrigational system, tube wells. जो हमारा second 5-year plan था, that was on industries. तो उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया? मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है वो उन्होंने अपने पास रखा, सो दैट लोग उस पर जो है उसको जो है फायदा ना उठाए. पहली बात तो वी वर नॉट हैविंग रिच पीपल एट दैट टाइम, फर्स्ट. सेकेंडली दे न्यू कि अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे भी देंगे, देन दे विल चार्ज मोर, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए रन करता है, whereas गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए रन करता है. So that is why the government did not give the industries to the private people, and 18 industries जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था. पर जैसे 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 टाइम हमारा चलता गया, मतलब कि when India was becoming self-sufficient, when India was becoming technologically also, otherwise also, so they started privatizing the industries. और अभी जो है the government has kept only the key industries in their hands, and most of them are privatized. And private industries जो है, they normally they are running for profit. So they charge high, and that is why earlier times most of the industries जो है related, they were with the government. It was all these जो प्लान थे हमारे हुए थे प्लानिंग कमीशन के अंडर, और जो प्लानिंग कमीशन का जो न्यू नेम है उसका नाम है नीति आयोग. The think tank of यूनियन गवर्नमेंट. मतलब ये गवर्नमेंट को प्लानिंग और उससे रिलेटेड में सारे, मतलब फाइनेंस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन सब में जो है इट गिव्स द एडवाइजेस. सो दिस इज, अभी जो न्यू नेम है वो है प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस कंडीशन, or you can say rules, we again divide the same. जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, यही जो प्राइमरी है, सेकेंडरी, इन्हीं को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड. आप कुछ भी, दोनों में से कुछ नहीं है. डोंट थिंक कि अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, दे आर ओनली द प्रीफिक्स. डिस या अन, यू कैन यूज एनीथिंग. नाउ इसके बीच में आपके कई बार यू मे हैव द डिफरेंसेस.
The difference is of course in the MCQ type only, not in any other way. Unorganized sectors आपके वो हैं which follows certain rules and regulations. They follow Wages Act, Factory Act, PPF, Public Provident Fund Act, Salary Act, Company Act. मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं जो उनको बाउंड करके रखते हैं. दे बाउंड देम. Under the Wages Act, they have to pay the minimum wage to a labor. Under the Factory Act, they have to ensure proper working conditions. Under the PPF Act, they have to pay a certain amount as providential fund. Under the Company Act, they have to follow certain norms for the employees. They have regular income, secured जॉब. इनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर्ड होती है, उनको वैसे नौकरी से नहीं निकाला जाता है. दे हैव द पेड हॉलीडेज. दे हैव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक बोनस. हर साल दिवाली के टाइम पर उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ बोनस दिया जाता है. Then they are given the facilities like LTC, PPF, gratuity, pension. LTC अगर कोई घूमने जाता है तो that particular person is paid some money so that वो आराम से अपनी फैमिली के साथ घूम के आए. एंड PPF होता है आपका जो भी इनकम है, वॉट एवर योर इनकम इज, मे बी 1,000 रुपीज, उसका एक पर्टिकुलर परसेंट 8% जो है दैट इज डिपॉजिटेड इन अ गवर्नमेंट अकाउंट. और जब आप नौकरी छोड़ते हो या आप रिटायर होते तो वो पैसा आपको सारा इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है. सेम इज ग्रेचुटी. पेंशन कुछ कंपनीज टिल यू आर अलाइव आपको और आपकी फैमिली, आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उनको मतलब की पेंशन देती. So these are the facilities that we get in the organized sectors. Whereas आपका disorganized sector बिल्कुल इसका opposite होता है. बिल्कुल इसका opposite होता है. There is no permanent, मतलब आपकी जो है security of job, आपको जॉब से कभी भी निकाल सकते हैं. No fixed पे और वेजेस, उनके वेजेस फिक्स नहीं होते हैं. एंड नो अदर बेनिफिट्स, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं देते बिकॉज दे डू नॉट फॉलो अंडर दीज ऑर्गेनाइज सेक्टर. उनको जब अब वो अपनी कंपनी को सेट करते हैं तो वो लोग अपने आप को जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ऐसा कुछ दिखा देते, तो उनको ये सारी चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर. And most of the people in our country, specifically the women and agricultural जो sector है, वो सब हमारा जो है disorganized sector में आता है, जहाँ they don't get any benefit of their services. And that is why we need to ensure कि हम अपने जो disorganized sectors हैं, उन पर भी कुछ rules implement करें. There are many, in fact, आप मानोगे नहीं, there are many companies which even though they are large company but they do not follow these rules because they are not in the organized sectors. Export import की companies हैं, they don't follow. मेरी sister के जो husband हैं, he is working in a very big company, मतलब वो तो world में भी बहुत माना हुआ company है, शाही exports. Yet he doesn't get any LTC, he doesn't get any medical benefits, he doesn't get anything, मतलब उनको कुछ नहीं. हाँ PPF है, gratuity है बस, but और कुछ नहीं. Nothing, no holidays, no extra benefits, no, मतलब कि वो सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 2, 3, 4 जब मर्जी आते हैं तब आते हैं.
इवन दो इट्स अ वेरी बिग कंपनी, बट वही है कि वी आर नॉट, ये जो एक्ट है, कंपनी एक्ट, पीपीएफ एक्ट के अंडर ये कंपनीज आती नहीं है, सो दे एंजॉय द बेनिफिट्स. सो वी नीड टू एंश्योर दैट हमारे जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, दे हैव टू बी मोर, they have to be, honed up. Government should make certain rules. ये इनमें जो काम करते हैं, they should also have all those benefits. Now, ये तो हमने कहा कि the sectors which are there in our country, which we have divided on the basis of working condition, on the basis of the activities done in that particular sector, or on the basis of the ownership. Yet, as I said, in our country there is agriculture, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है. We have the maximum people working in. And इसकी वजह से क्या होता, unemployment भी आपका जो है बहुत ज़्यादा रहता है. There is also unemployment. Now we can divide the unemployment scenario into different areas. Even though we are having sectors, yet the curse of unemployment You have called me. unemployment goes up. Now, what is unemployment? It's a situation. Unemployment is a situation when people want to work, they wish to work, मतलब वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार वो काम करना चाहते हैं, but do not get jobs. That is the situation which we call as unemployment. And this unemployment is different in different areas. We have seasonal, we have disguised, we have open unemployment. Now what are these? अब ये क्या है? Seasonal unemployment is more characterized in एग्रीकल्चर सेक्टर. आप ऐसा जो मतलब कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आप देख सकते हो इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा होते हैं. मोर. वाई? बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर सीजन द farmers are without any work, because agriculture is a seasonal job. You do not sow all the year, you do not harvest all the year, you do not water all the year. So there are time when you need more labor, and at the same time there is a time when you need very less labor. So उस period में the people might be unemployed, and then what happens is these people, they shift, or you can say they migrate to nearby cities. और इसीलिए सीजनल लेबर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या एग्रीकल्चर में आपका माइग्रेशन बहुत रहता है, और वो वहां जाकर छोटे मोटे काम करते हैं, बट समटाइम्स दे मे नॉट बी गेटिंग द जॉब, और दे मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू गो, तो दे रिमेन, वो स्टार्व करते हैं. बिकॉज एग्रीकल्चर में आपका इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा बचाकर पूरे साल खर्चा करे. Disguised, again, sorry, season is also there in urban areas, like construction hota hai. That period when monsoon season is going on, that period the constructions are stopped. Abhi smoke hua tha piche last year in Delhi, so the construction activities were stopped. Pandemic hua tha, the construction activities were stopped. At that period, these जो ये laborers होते हैं, they remain unemployed. That is seasonal or seasonal unemployment. now disguised as, you can also call it as
underemployment. Under unemployment means you may think that a person is working, but his skills, his capability is not used completely. He may be working as an extra effort. He may be helping as he may be working as a helper. लेकिन अगर हम उसको उस काम से हटाकर दूसरी जगह देंगे तो वो काम तो होगा ही होगा, टाइम से दूसरी जगह जाएगा तो he will get more. It is also seen more in agriculture. Underemployment or disguise is also seen in agriculture. It is not that कि और कहीं नहीं होता है, और भी होता है, but यहाँ ज़्यादा होता है. And the very common example is the same, that on a farmland you require 3 or 4, क्योंकि that depends कि आपका कितना बड़ा farmland है. If it is a small one, you require 4 or 5. और आपके घर में 10 जने और सभी उसमें लग रहे हैं, there is no need, क्योंकि उसको उतना ही पानी चाहिए होगा, उसको उतना ही खाद चाहिए होगा, और वो 2 जना भी डाल सकता है. So जो rest of them है, they are all disguised unemployed. Next is आपका open unemployment. Means a person is educated but he is not getting the job. A person is skilled, he is not getting the job. It is very common both in agriculture also, and it is very common in urban areas. हम पढ़ लेते हैं, we are graduates, we don't get. We are grads and post grads, we don't get the job. Because हम जो जॉब चाहते हैं या हम जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया है वैसे जॉब्स मार्केट में नहीं है, और मार्केट में जो जॉब्स हैं उसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं है. सो दिस इज ओपन अनएम्प्लॉयड. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हाउ कैन वी फाइट अनएम्प्लॉयमेंट. तो मैंने अभी आपको इससे पहले आई हैड गिवन यू वन वर्ड and that was Niti Aayog. This is also there in your book. Planning Commission's new name is Niti Aayog. So according to Niti Aayog, we can produce around 35 lakh jobs. Abhi the Planning Commission has also envisaged the Make in India, उन्होंने start किया है. Then they have started the Skills India, skill based, मतलब they are starting the program जिसमें Make in India होगा तो लोगों को जो है सब्सिडी दी जाती है. In 11th standard you have we have a subject called entrepreneurship. So they have introduced these kinds of subjects in 11th 12th also, कि आप लोग 11th 12th में करने के बाद you can set up your own entrepreneurship. आप अपनी छोटी सी अपना बिजनेस को सेट कर सकते हो. अंडर मेक इन इंडिया आप इंडिया में ही चीज़ें बनाने की कोशिश कर सकते हो. उससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी आपका जनरेट होगा. Then they are also giving many this training for skills. आपके डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बड़े सारे स्किल्स, वर्ल्ड स्किल्स स्कूल किए हैं, सेटअप किए हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, देन आपका फैशन मैनेजमेंट, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं. देन आप जो हो उसे करके यू कैन गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट. द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग. Besides, they have also launched the scheme what we call as नरेगा. नरेगा में बाद में आपका MN ऐड हो गया था, इसीलिए इसको महात्मा गांधी नरेगा बोलते हैं. वैसे इसका नाम नरेगा 2005 है. This was launched by Dr. मनमोहन सिंह, जो उस वक्त में he was the Prime Minister. He is also an economist. तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था.
According to this, the government has classified the हमारे इंडिया के कुछ एरियाज को उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, एंड दे सेड दैट अराउंड 150 डिस्ट्रिक्ट, जो स्टार्ट किया था तब की बात कर रही हूँ, अभी इट इज नाउ बीन इनटू 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है. दे हैड क्लासिफाइड दीज डिस्ट्रिक्ट्स और उन्होंने यहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इन दीज डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल काम होते हैं, लाइक बिल्डिंग ऑफ द रोड्स और द फ्लाईओवर्स और डैम, कुछ भी गवर्नमेंट जो है बनाती है. सो देयर इज 100 days guaranteed job to the semi skilled or unskilled people. But they have to register themselves. इनको जो है अपने इलाके के, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आपका ग्राम सभा है वहां पर इनको अपने आप को रजिस्टर करना है. If they register, they get 100 days guaranteed job. This is for semi-skilled इनको 100 days का जॉब दिया जाता है, एंड दिस इज विद इन अ रेडियस, मतलब आसपास में ही दिया जाता है. इन द नियर बाय रेडियस में ये काम उनको दिया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज, इसमें जो 1/3 जॉब्स हैं दे आर ऑल्सो रिजर्व फॉर विमेन. मतलब देर इज, you can say women empowerment. इसमें 1/3 jobs they also ensure for the women. And in one case they are not able to, अगर किसी वजह से they are not able to give this job, तो they have to give the wage, उनको जो है wage allowance देना पड़ता है. They have to give the wage allowance. And in this manner, Narega has been one of the key point under right to work. According to Constitution, every person has the right to work. हर एक इंसान का जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो वो काम करना चाहता है, that person can pursue. And under that, they have implemented this Narega. That is why it is also said as an extension of right to work. Plus, प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग का ये भी कहना है कि if we develop the sectors like education, health and tourism, अगर हम इनको डेवलप करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ या टूरिज्म, सो वी कैन ऑल्सो जनरेट लैक्स ऑफ जॉब्स. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज, एक स्कूल बनेगा तो स्कूल बनाने के लिए यू रिक्वायर मेजन्स, यू रिक्वायर लेबर्स. वंस द स्कूल इज रेडी यू रिक्वायर प्रिंसिपल, टीचर, पियोन, मतलब आपको इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है. The same is with health. When you are making, you require laborers. When you have finished it, you require doctors, nurses, compounders, then medical as well as paramedical staff it can give. And tourism, the area can also be developed, as well as वहाँ होटल्स आएंगे तो आपके लेबर्स आएंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट, रोड, इन सब बनाने के लिए. एंड व्हेन देयर आर, मतलब कि व्हेन दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स, देन आल्सो दे आर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. द गाइड्स, द रेस्टोरेंट मैनेजर्स, दे आर गोइंग टू इंश्योर. दिस वे, इफ these sectors, that is the tertiary sectors हैं ये, अगर हम इन पर ज़्यादा ध्यान दें तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है that can be tackled. And if we are able to tackle all of them,
and if we are able to generate income as well as employment, then the development of our country is definitely going to boost up in the coming years. Though the government has started off with many schemes, like अगर आप नीति आयोग के उसमें जाओगे, if you go to its website, you will find there are 25 areas जहाँ वो कहता है कि you can अपने आप को आप लोग जो हो establish कर सकते हो. So that is what we call as sectors of Indian economy.